Welcome students. This video lecture is a part of Flow State Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 5 Surface Chemistry. This is part 8 and today we discuss about the classification of colloids. आज हम classification of colloids को completely finish कर देंगे. Basically है क्या? एक last classification on the basis of nature of dispersed particle रह चुका था. In our previous lecture we discuss about the various type of colloids on the basis of physical state of dispersed and dispersion media एंड और सेकेंडली जो आपने बात की थी वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्जन मीडिया विद द सॉल्वेंट यानी कि लाइफोबिक और लाइफलिक टाइप के. आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल के नेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है. तो बेसिकली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ colloids: multimolecular, macromolecular and associated colloids. Okay, so first we have a look on this multimolecular. जैसा कि नाम से पता चल रहा है मल्टी मीन्स टू मैनी. यहाँ होता क्या एक्चुअली छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर खूब सारे स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म ए बिगर वन. ओके, सिंगल पार्टिकल तो कॉलोइडल रेंज में नहीं आता, लेकिन खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर एग्रीगेट होकर एक बड़ा सा पार्टिकल बनाते हैं that lie in a range of colloidal range. Because of that it is called multimolecular. है ना? That is already explained in the definition. A large number of atoms or molecule which with diameter less than 1 nanometer. सिंगल मॉलिक्यूल एटम का और मॉलिक्यूल का डायमीटर से 1 नैनोमीटर से कम है, बट इफ दे एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म a species which lying in a colloidal range, then such type of colloids are called multimolecular. जैसे गोल्ड सोल है, तो गोल्ड सोल के अंदर जो गोल्ड पार्टिकल है उसका इंडिविजुअल डायमीटर जो है वो काफ़ी कम है और वो कोलोइडल रेंज में लाई नहीं करता, लेकिन खूब सारे कोलोइडल पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं एंड दे बिकम्स अ सिंगल स्पीशीज that lie in a colloidal range. That's diameter is lie in a colloidal range and that is called molecular, multimolecular. A similar acid molecule is there, sulfuride molecular. तो ये भी multimolecular में आएगा. Now we talk about the second type of colloidal colloids, that is macromolecular. As we know from the terms, macro means होता है bigger और large. मैक्रो मोलिकुलर दैट मीन्स ऐसे पार्टिकल्स जिनकी साइज काफ़ी बड़ी है. those are giant in nature, they are giant molecules, and generally we have biomolecules which are already giant molecule because they are polymers. So basically if polymer form a colloid, then it is lying in the category of macromolecular colloids. Okay, so biomolecule with large molecular masses are dissolved in suitable solvents and form macromolecular type of colloids. बेसिकली मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड जो है बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनते हैं. इफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, आरएनए, डीएनए, ब्लड, ये सारा जो है बायोमोलिक्यूल जितने भी हैं आपके पास. ब्लड इज नॉट ए बायोमोलिक्यूल. ओके, ब्लड इज ए टिश्यू. मैं बात थोड़ा सा स्लीप हो गया, ब्लड नहीं है यहाँ पर. आप यहाँ प्रोटीन ले लीजिए, अमीनो एसिड जिससे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है प्रोटीन. तो प्रोटीन ले लिया आपने, न्यूक्लिक एसिड ले लिया आपने यहाँ पर, तो जैन एंजाइम्स ले लिया आपने यहाँ पर, गम ले लिया आपने, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, जिलेटिन इज आल्सो देयर. सो if these biomolecule with a large molecular masses are dissolved in a suitable solvents, then they form a macromolecular type of solvents. बहुत सी बार क्वेश्चन बन जाता है कि गोंद को अगर आप पानी में डिसोल्व करते हैं तो किस टाइप का कॉलोइड आपको फॉर्म होगा. देन ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट दिस मैक्रोमोलिकुलर. For example, starch, gelatin, gum, nylon, cellulose, enzymes, etc. When dissolved in a suitable liquid, they form colloids. That I already talk about. Next is macromolecular substances are generally polymers. Why we call it them polymers? Because they are made up of number of monomeric forms. That's why we call them polymer. बड़े हैं, giant है, तो obviously बहुत सारे छोटे छोटे particles से मिलके बने होंगे. Now we talk about the associates colloids. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, there is a kind of association. एसोसिएशन होता है बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनती है. ओके, फिर आप सोचेंगे कि तीनों केसेस में एसोसिएशन ही हो रहा है ना, दोनों केसेस में. यानी कि इससे पहले बात की थी मल्टी मोलिकुलर और एक ये आ गया एसोसिएट कॉलोइड्स.
दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टी मोलिकुलर में क्या है, जैसे गोल्ड सोल्ड है मान लीजिए, गोल्ड सोल्ड जो है अंदर से खोखला नहीं है, उसका जो स्फेयर बनता है वो कम्प्लीटली कैसा है, सॉलिड सॉलिड है बिल्कुल, अंदर से और बाहर से। बल्कि एसोसिएट कलर्स में क्या होता है कि जो कंबाइनिंग और एसोसिएट पार्टिकल्स हैं दे आर लाइंग ऑन अ पेरीफेरी ओनली, वो पेरीफेरी पर आपके लाइन करेंगे, बॉल की तरह काम करेंगे, अंदर जो है बिल्कुल खाली होगा। दैट इज एसोसिएट टाइप ऑफ कलर्स, जिसे आप माइसेल बोलते हैं, 10th में पढ़ा होगा। सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पानी में जैसा आप इसे डिजोल्व करते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और यहाँ मैं बात करूंगा सोप एंड डिटर्जेंट की। Some strong electrolytes at the high concentration or higher concentration exhibit the colloidal state properties due to the formation of aggregate particles called associate colloids। यानी कहने का मतलब ये है, whenever soap and detergent are taken to be in a higher concentration, at that time they associate together and form a spherical structure that is called micelle and form associate colloid। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हायर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है मान लीजिए आपका 2 m, यानी कि 2 मोलर कंसंट्रेशन आपकी रिक्वायर्ड है, तो उतनी ही चाहिए। फिर अगर उससे थोड़ा सा 1.8 या 9 हुआ तो फिर कोलेट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अलग अलग सोप की या डिटर्जेंट की अलग अलग होती है, दैट इज कॉल्ड CMC, क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन, बाद में बात करेंगे। सो दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर सोप एंड डिटर्जेंट। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोप और डिटर्जेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो की हुई है और ये कोशिश की है बताने हुए कि अगर सोप एंड डिटर्जेंट जो भी है आपके, उनकी क्वांटिटी कम है यानी कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो एक फ्री इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। दे बिहेव एज ए फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए यहाँ पर सोप पार्टिकल है, ये बिल्कुल अलग है। दे नेवर एसोसिएट टुगेदर, अभी ये कोलोइडल फॉर्म में नहीं आया है। बट क्या होगा जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप राइज कर देते हैं, एट दैट टाइम इट फॉर्म अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसेल, तब ये माइसेल बनाएगा। पढ़िए यहाँ पर, सेपरेट आयन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर थोड़ा सा गौर करिएगा। लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये कभी भी जो है क्या नहीं करते, यस, लो कंसंट्रेशन पर जो है, लो कंसंट्रेशन अगर है इनकी, तो ये क्या नहीं करेंगे, ये कभी माइसेल यानी कि कोलोइड्स नहीं बनाएंगे, एसोसिएट टाइप के कोलोइड्स ये फॉर्म नहीं करेंगे। एज वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, यानी कि जब आप कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, हाई करने पर जो है एसोसिएट कोलोइड बनाने के लिए, माइसेल बनाने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होती है कितनी तो चाहिए ही, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन और CMC। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है C17H35CON है, ये सोडियम स्टीरेट है। और सोडियम स्टीरेट में जो है 100 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल से शो किया हुआ है। 10th में आपने ऐसा मॉलिक्यूल देखा होगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा बना हुआ। तो ये जो है लॉन्ग कार्बन चेन जो है, कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन मेटल चेन, दैट इज हाइड्रोफोबिक टेन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक का मतलब होता है, फोबिया का मतलब होता है रिपेलिंग, जिसे डर बोलते हैं आप। तो ये वाटर से दूर भगता है, डरता है मतलब। Hydrophobic means water repelling end. This is a non-polar part completely and it repel the water content and always away from the water. And this hydrophilic end is always towards the polar part, is the polar part and is always towards the water. अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो टेल है, ये पानी बहा रहे हैं यहाँ पर। मैंने बोला था क्योंकि ये अंदर से खोखले होते हैं बिल्कुल। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन मल्टी मोलिकुलर एंड एसोसिएट कलर्स कि ये बीच में से क्या है, एम्प्टी है। या उनके ओनली टेल्स हैं यहाँ पर, काफ़ी स्पेसिस वो भी अवेलेबल है। वाटर से जो दूर है दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड, वाटर रिपेलिंग एंड जो है दूर है, और बाहर जो है वाटर की तरफ जो है इसका हाइड्रोफिलिक एंड यहाँ पर लाई करता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड, दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल जो है नॉन पोलर है, हाइड्रोफिलिक हेड जो है पोलर पार्ट है। इस तरीके से आप सब मोलिक्यूल को आप ऐसे शो करते हैं। ओके, सो सब मोलिक्यूल के दो पार्ट हो गए, हेड रीजन एंड टेल रीजन। हेड इज अ पोलर पार्ट, टेल इज अ नॉन पोलर पार्ट। Head is a hydrophilic end and tail is a hydrophobic tail। And टर्म्स की बात करते हैं जो यहाँ एसोसिएट क्लोड से जुड़ी हुई है। द फर्स्ट वन इज माइसेल। बोला है मोर देन 100 molecules of the soap are aggregate together to form a spherical structure called micelle। तो 100 से ज्यादा जब भी कोई मॉलिक्यूल है सोप के, वो अरेंज हो जाते हैं, गेट टुगेदर एंड फॉर्म a spherical structure called micelle।
जैसे कि इस डायग्राम में जो किया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसे बोलते हैं हम माइसेल। ओके, स्फेरिकल स्ट्रक्चर को माइसेल बोला जाता है। यहाँ माइसेल फॉर्म नहीं हो रही है, यहाँ कोई माइसेल नहीं है, यहाँ ये माइसेल है। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, CMC क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इतनी तो चाहिए ही, तभी आपकी क्या बनेगी, माइसेल। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ माइसेल कॉल्ड CMC, जो मैं पहले बता चुका था। नेक्स्ट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर अबाउ विच माइसेल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, यानी कि इतना टेम्परेचर चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो माइसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। लो टेम्परेचर पर माइसेल फॉर्मेशन नहीं होता। हर सोप के लिए, हर डिटर्जेंट के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स है कि इतना तो चाहिए माइसेल बनाने के लिए। ओके, CMC भी चाहिए और क्राफ्ट टेम्परेचर भी चाहिए। क्राफ्ट टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। द टेम्परेचर अबाउ विच माइसेल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर, मतलब जितना तो चाहिए ही, above which myself will take place. Okay, now the last topic of this slide, that is cleaning action of soap. Okay, how soap is work. बेसिकली यहाँ क्लॉथ दिया हुआ है, क्लॉथ के ऊपर मान लीजिए ऑयली डर्ट लगा हुआ है, दैट इज ग्रीस, या ग्रीस लगा हुआ मान लीजिए। इट इज अ नॉन पोलर पार्ट, ग्रीस एक नॉन पोलर पार्ट है। एंड एज यू नो दैट द लाइक इंटरेक्ट विद द लाइक, तो दो सेम जो है चीजें वो आपस में इंटरेक्ट करती है। नॉन पोलर पार्ट जो सोप के नॉन पोलर पार्ट को खींचता है, ग्रीस के जो है चारों तरफ जो है नॉन पोलर पार्ट जो टेल है, वो इस ग्रीस के साथ क्या हो गई, कंबाइन हो गई। आपने जैसे साबुन लगाया इसके ऊपर, सोप सॉल्यूशन के अंदर आप इसे डिप करते हैं, तो हेड रीजन जो है सोप का मॉलिक्यूल का, वो तो बाहर की तरफ लाई करता है, वाटर की तरफ, और जो टेल रीजन है वो नॉन पोलर पार्ट की तरफ बॉन्डिंग कर लेता है। अब एक्चुअली क्या होता है, जब आप इसे डिप करके निकालते हैं, जब आप उस क्लोथ को जो है पानी में आप डिप करके बाहर निकालेंगे, वाटर जो है वो तो रहेगा नहीं क्लॉथ के साथ, वो तो बाल्टी में ही गिरेगा वापस। तो वाटर के साथ जो है कौन चला जाएगा, ये पोलर पार्ट अटैच हो जाता है टाइटली। तो इस पोलर पार्ट से टेल जुड़ी है और टेल के साथ जुड़ा हुआ ग्रीस, ग्रीस के मॉलिक्यूल को क्लॉथ से अलग कर लिया जाता है इस तरीके से माइसिल बनाकर। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है क्लॉथ वो क्लीन हो जाता है। तो स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हुई। फर्स्ट स्टेप, first we have to apply the soap over the cloth, and micelle formation will take place. And if it if we dip that cloth inside the water, fresh water, then dirt remains inside the water and we got a clean cloth. तो इस तरीके से आप तीन स्टेप्स आप से लिख सकते हैं और डायग्राम के साथ शो भी कर सकते हैं। ओके, so this is all about today lecture, and if you got any doubt you can ask in our comment section, and thanks for watching this video and have a nice day.